اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اس کا سسرال بھی کسی مویشی منڈی سے کم نہیں تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ اور بھانت بھانت کی آوازیں۔ نندے اور دیورانیاں اسے کم روشنی والے اندھے سے کمرے میں چھوڑ کر باہر کہیں گم ہو چکی تھی۔ بھوک الگ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرے میں کھانا سجائے نانی اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹرے میں نان، قورمہ اور زردہ سجا ہوا تھا۔ بھوک کو ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ نانی بس مسکراتی رہی تھی۔ میں جانتی تھی تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ تمہاری دادی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ گھر والوں کی طرف سے بلقیس کی شکایتیں بڑھ رہی تھیں کہ بس کھانے پینے کی فکر میں مبتلا رہنے والی عورت ہے۔ بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتی، لور لور پھرتی رہتی ہے۔ وہ سب باتوں کا یقین کر لیتا تھا۔ بی اے پاس مراد کے پاس عقل میٹرک فیل بلقیس جتنی بھی نہیں تھی۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا مکمل ناول لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے صرف تمہاری بلقیس۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ کسی عام سے گھر میں کسی کارنس پر کوئی عام سی چیز گھر کے مکینوں کی نظروں سے دور سالوں پڑی رہتی ہے، اور پھر کسی شام وہ چیز دھیرے سے غائب ہو جاتی ہے، اور سالوں کسی کو بھی اس کی گمشدگی کا خیال نہیں رہتا۔ عام سے گھر کے عام سے کارنس پر رکھی ہوئی ایک عام سی چیز، اور باہر دنیا پر اتری خاص سی شام۔ رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا ہوا وہ عام سا شادی والا گھر تھا، جہاں سہیلیوں کے جھرمٹ میں گھر کے آنگن میں دری پر بیٹھی وہ عام سی دلہن بلقیس عرف بلو اپنی ہی شادی میں مزے سے تالیاں پیٹ رہی تھی۔ ہر طرف ماہیے ٹپوں کی آوازیں تھیں۔ تبھی کسی کا دھیان تالیاں پیٹتی ہوئی دلہن کی طرف نہیں گیا تھا۔ ٹپے کے ختم ہوتے ہی اپنی ہی لے میں مست دلہن کی تالی سب سہیلیوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ناجیہ نے دلہن بنی سہیلی کو دھموکا جڑا تھا۔ شرم بیچ کھائی ہے کیا تم نے؟ بھلا اپنی ہی شادی میں کون اس طرح تالیاں پیٹتا ہے؟ سہیلی کے شرم دلانے پر بھی بلقیس پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ گلاب اور موتیا کے گجرے پہنے مہک رہی تھی اور چہک بھی رہی تھی۔ ناجیہ کی بات پر اس نے برا منایا تھا۔ ارے بھائی، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس میں کیا برائی ہے کہ دلہن بیچاری تالیاں بجائے؟ پاس بیٹھی سہیلیوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹھا لگایا تھا۔ پھر تو جنازے کے موقع پر مردے کو بھی اٹھ کر اپنی فاتحہ خود کر لینی چاہیے۔ مردے اور جنازے کی بات پر تو دلہن بھی دہل گئی تھی۔ چہرے کے حواس جاتے رہے۔ خبردار، کسی نے میری شادی کے موقع پر یہ جنازے مردے کی باتیں کی تو پھر اس کا حل یہی ہے بی بنو کہ آپ بالکل خاموشی سے بیٹھی رہیں اور محفل کا لطف اٹھائیں۔ اپنے ہاتھوں کو زحمت دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، ورنہ بھرے پنڈال میں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی شرمسار کر کے رہیں گی۔ بہت سارے وعد و وعید کے ساتھ دلہن کو خاموش کرایا کیا۔ دلہن بیچاری ٹپے سنتے ہوئے اپنے کلائیوں میں پہنے ہوئے گلاب موتیے کے پھول توڑتی رہی۔ ہر طرف مہکار تھی، ہر طرف پکار تھی، اور اس سارے ہنگامے میں لڑکیوں کے ٹپوں نے عجیب سا جادو کر دیا تھا۔ ہیرا لکھ سوا لکھ دائے، رات کے آنچل پر ستارے ٹمٹمانے لگے تھے۔ آخر کار تھک ہار کر لڑکیوں نے ڈھولک پرے پھینک دی تھی اور خود دلہن کو گھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ساتھ مٹھائیاں بھی کھائی جا رہی تھیں اور دلہن سے سوال و جواب کا سیشن بھی عروج پر تھا۔ بلقیس اور بلو لاج سے بیر بہوٹی ہوئے جا رہی تھی۔ گالوں میں لالیاں پڑ رہی تھیں۔ ارے ایسے کیسے تم نے ہاں کر دی بغیر فوٹو دیکھے، ملاقات کیے؟ فوٹو تو دیکھی تھی، لگتا ہے پرانی فوٹو تھی۔ تیدے پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھو تو مدھم دکھائی پڑتی تھی۔ مجھے تو دادی نے بتایا کہ تم سب کے دولے بھیا سعودیہ میں اچھی نوکری کرتے ہیں، اور تو اور بی اے پاس ہیں۔ بی اے، اور سب سے بڑی بات، میں نے پکا سوچ لیا، شادی کے بعد تم لوگوں کے لیے خاص طور پر کھجوریں آب زمزم بھیجا کروں گی۔ سہیلیاں جھرمٹ میں بیٹھی تھی، معینے خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ ایک بات تو ہے، بڑے بوڑھے کہتے ہیں پردیسی سب کا ہوتا ہے، پردیسی کا کوئی نہیں ہوتا۔ دولے بھیا تو اپنے بہن بھائیوں کی فرمائشوں میں ہی مصروف ہو جائیں گے۔ بھلا ایک بار کوئی سمندر پار چلا جائے تو واپس تھوڑی آتا ہے۔ اور تمہاری دادی بتا رہی تھی خیر سے تمہارا سسرال پورا مچھلی بازار ہے، 3 نندے اور 4 دیور۔
سہیلیوں کے بات پر عام سی دلہن کے چہرے پر ہلکی سی لہر آ کر فراٹے مارتی گزر گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی مٹھائی اس نے دھیرے سے اپنی سہیلی ناجیہ کی ہتھیلی پر رکھتی تھی۔ کوئی بات نہیں، گھر تو بھرے پورے ہی اچھے لگتے ہیں، جتنے زیادہ جی ہوں گے اتنی ہی رونق ہوگی۔ ہمیں ہی دیکھ لو، بانس جیسی 5 کی 5 بہنیں جنہوں نے ساری زندگی اماں ابا کے سینے پر مونگ ڈلنے کے سوا کبھی کچھ نہیں کیا۔ ہماری جوانی نے ہمارے ابا کی جوانی چوس لی۔ خیر سے میرا رشتہ ہو گیا، شادی ہو رہی ہے، کل کو باقی 4 کی بھی ہو جائے گی اور ابا سکون میں آ جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں آسمان کے تاروں نے بلقیس اور پلوں کی آنکھوں میں دریا تیرتے ہوئے دیکھے تھے۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی دلہن تھی کچھ دیر پہلے اپنی شادی کے ہنگامے میں مزے سے تالیاں پیٹ رہی تھی۔ ویسے تمہارا یہ رشتہ ہوا کیسے؟ شادی کے ہنگامے میں محلے بھر کے بچے ان کے آنگن میں جمع تھے۔ بچوں کی مائیں دھموکے جڑتی ہوئی اپنے اپنے گمشدہ اولادوں کو تلاش کر کے واپس گھروں کو جا رہی تھیں۔ ہولے ہولے وہ آنگن بچوں کی شرارتوں سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ زمین پر دور دور تک گیندے کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور ویسے ہی پیلا پن بلکہ اس کے چہرے پر بھی نظر آتا تھا۔ میری دادی اور دولہا کی نانی گوڑی سہیلیاں ہیں۔ دونوں مدت بعد صرافہ بازار میں ملی۔ دونوں کی پرانی محبت جاگ اٹھی۔ دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس رشتے کو مضبوط کر لیا جائے، اور ایسی اچانک یہ رشتہ ہو گیا۔ اماں ابا کو بھی میرا بوجھ سر سے اتارنا تھا، اور ادھر تمہارے دولہا بھائی کو بھی ان کے گھر والوں نے بیڑیاں ڈالنی تھی۔ اپنے گجروں سے کھیلتی دلہن دھیرے سے ہنسی تھی۔ پاس بیٹھے زرکا کو تعجب ہوا تھا۔ بیڑیاں تو عورت کے حصے میں آتی ہیں، کبھی کبھی پردیس میں بیٹھے ہوئے مرد کا بھی مقدر بن جاتی ہیں۔ ویسے آج تم کچھ عجیب عجیب سی باتیں نہیں کر رہی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے تم خواتین شوہر ڈائجسٹ کی کہانیاں پڑھ کر سوچا کرتی تھی کہ تم کسی شہری ہینڈسم شخص سے شادی کرو گی، اور وہ بھی محبت کی شادی۔ وہ سارے خواب کیا ہوئے؟ رسالے اور کہانیاں پڑھ کر تو میں نے زندگی کو جینا سیکھا ہے، حقیقتوں کو پڑھنا سیکھا ہے۔ رہی بات ہینڈسم شخص کی، تو ضروری نہیں ایک ہینڈسم شخص اچھا شریک حیات بھی ہو۔ میرے سسرال سے مراد کی جو دھندلی سی فوٹو آئی تھی وہ شاید انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھنچوائی تھی۔ اب خود بتاؤ، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے انسان سے بڑھ کر کوئی ہینڈسم ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں نا۔ اور یہی وجہ تھی میرے دل نے ہاں کر دی۔ اب بتاؤ بھلا، انکار کرتی تو کہیں کی نہ رہتی۔ پتہ نہیں کیوں سہیلیوں کے جھرمٹ میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ عام سی بلقیس اور بلو اچانک خاص، بہت خاص ہو گئی تھی۔ گجرے مہکتے رہے، رات بیت جاتی رہی، اور رات کے آخری پہر دھیرے سے چاند کی ٹھنڈی چاندنی میں وہ دلہن اپنے ہونے والے شوہر کی فوٹو دیکھتے خوش ہو رہی تھی۔ عام سے گھر میں کارنس پر رکھی ہوئی کسی معمولی شے کی طرح بلقیس نے عمر گزاری تھی۔ کون جانے بلقیس کی گمشدگی گھر کے مکینوں کو تا عمر یاد رہنے والی تھی، کیونکہ جس کو ہر کوئی عام اور معمولی سمجھتا تھا وہ تو ڈھول تاشوں اور بہت سارے شور شرابے میں جب بارات اس کے محلے میں پہنچی تو ہر طرف لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا تھا۔ مراد علی کو ایک دولہا ہونے کی حیثیت سے دلہن کا پورا محلہ ایک پروٹوکول کے ساتھ سٹیج کی طرف لے گیا تھا اور اسے اہتمام کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ آس پاس ٹینٹ اور تمبو لگے ہوئے تھے جن کے پھٹے ہوئے کپڑوں سے بچے مزے سے کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے بجائے جانے والے پٹاخوں کا دھواں ابھی بھی فضا میں باقی تھا۔ مراد علی ہولے ہولے کھانس رہا تھا، اور دولہے کی کھانسی سے سسرال میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ چاروں سالیاں ٹھنڈے ٹھار پانی کے ساتھ آن موجود ہوئی تھی۔ دولہے بھیا، ٹھنڈا پانی پی لیجئے نا، آپ کا گلا صاف ہو جائے گا۔ چپ چاپ اور خاموش بیٹھے ہوئے دولہے میاں نے گٹا گٹ ٹھنڈے پانی کا گلاس چڑھایا تھا۔ کچھ سکون کا سانس لیا تھا۔ پنڈال سے آہستہ آہستہ سرگوشیاں بلند ہوتی رہیں۔ سسرال کے محلے والے دولہا میاں کا پوسٹ مارٹم کرتے رہے۔ دولہا میاں ان ساری باتوں سے مستفید ہوتے رہے۔ ارے دیکھو تو کتنا چپ چاپ شریف نظر آتا ہے، لگتا ہے لاٹری لگی ہے ان کی۔ سننے میں آیا ہے سعودیہ میں ریال کماتا ہے، اور تو اور BA پاس بھی ہے۔ مراد علی پچھلے 4 سال اور 3 مہینوں سے ایسی باتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اب یہ موضوع اس کے لیے کسی بھی حوالے سے دلچسپ نہیں رہا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا شاید یہ شہر، ہر گلی، ہر محلے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک جیسی باتیں کرنے والے۔ تب ہی اڑتے ہوئے کچھ الفاظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ مجھے تو حیرت ہے، اس مری ہوئی میٹرک فیل چھپکلی جیسی لڑکی بلقیس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو کیسے گیا؟ لگتا ہے لڑکے والوں پر کوئی جادو ٹونا کروا کر لڑکی کی دادی نے ان کے منہ بند کیے ہیں، ورنہ ذرا دولہا تو دیکھو، سفید کڑکڑاتے کاٹن کے سوٹ میں کیسا دل کو بھا رہا ہے۔
एक नज़र देखो तो दूसरी नज़र डालना मजबूरी बन जाती है। मुराद अली ये सब सुनकर अजीब कैफियत में घिर गया था। शायद नहीं बल्कि यकीनन इसी लड़की के बारे में बात हो रही थी जो कुछ ही देर में निकाह के कागज़ों में इसकी बीवी के तौर पर दर्ज होने वाली थी। मैट्रिक फेल, छिपकली जैसी और आम सी लड़की। नाम भी तो देखो, बिल्किस। सफ़ेद कड़कड़ाते कॉटन के सूट में सऊदी इतर लगाए मुराद अली को दुल्हन की सहेलियों ने घेर लिया था। वो ज़िंदगी में हजूम से दूर भागने वाले लोगों में से था। यह तमाम भी इसके मिजाज पर गिरा गुजरा था। भड़कीले शोख अदाओं वाली अल्हड़ दोशीज़ाएँ दूध पिलाई की रस्म के लिए स्टेज पर जमा थीं। हमारी एक बात सुन लें दूल्हा भाई, हम दूध पिलाई पाकिस्तानी रुपयों में नहीं, सऊदी रियाल में लेंगे। आखिर हमने भी तो अपनी टोर बनानी है कि हमारे दूल्हा भाई ने हमें दूध पिलाई में सऊदियों के पैसे दिए हैं। और हाँ, सऊदी इतर की एक एक डब्बी भी हमारे घर भिजवाना मत भूलिएगा। मुराद अली ने कड़कड़ाते बहुत सारे सऊदी रियाल लड़कियों में बांट दिए थे। हबड़ दबड़ में दूल्हे को बादामों वाला दूध पिलाई बगैर अपने सऊदी रियाल के हिसाब किताब में मसरूफ़ हो गई थी। मुराद अली की आंखों ने मदद के लिए दूर खड़ी नानी की तरफ देखा था। दुल्हन की दादी और अपनी यार गार के साथ गुफ्तगू में मशगूल नज़र आती थी। दोनों मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन आराइशी गरारों में क़यामत ढा रही थीं और दोनों इस बात से कतन लाइल्म थी कि ससुराली हालात और वाक़यात देखकर क़यामत तो मुराद अली पर गुजर रही थी। कुछ ही देर बाद इन्हीं लालची हरीस सहेलियों के झुरमुट में दुल्हन साहिबा ने स्टेज पर कदम रखा था और इसे मुराद के दाईं तरफ बिठा दिया गया था। सखी सहेलियों के साथ शायद एक आध कहा दुल्हन साहिबा भी लगा चुकी थी। पास खड़ी सहेली ने मुराद का शायद चेहरा पढ़ लिया था, नागवारी की लहर भी महसूस कर ली थी। बल्कि इस खामोशी से मुंह में घुनघुनियाँ डालकर बैठी रहो, दूसरी सहेली ने तान लगाई थी। अरे बिल्लो के मुंह में घुनघुनियाँ नहीं, नान खताइयाँ हैं, घुलने में नहीं आ रही। हंसी मजाक चलते रहे और मुराद अली का दिल जलता रहा। निकाह भी इन्हीं हालात में हुआ था। बीच में कहीं मुराद अली की लाइल्मी में मुराद का पाँव दुल्हन के पेशवास पर पड़ गया था। लाल लिबास में गठरी बनी दुल्हन ने सदा बुलंद की थी, सुनिए जी, हमारे सूट पर आपका पाँव पड़ गया है, हमारे गले में सांस अटक रहा है, प्लीज़ अपना पाँव संभालिए। मुराद अली ने फट से पाँव उठाया था और गठरी ने गहरी गहरी सांस ली थी। बहुत ही कोई अजीब सा लम्हा था जो दुल्हन दूल्हा को एक साथ शर्मिंदा करके मज़े से गुजर गया था। रुखसती से ज़रा देर पहले दुल्हन ने अपनी दादी जान को पकड़ लिया था। दादी ज़रा देखें तो आज अपनी शादी के दिन मरते मरते बची हूँ। आज आपकी बल्कि इसको कुछ हो जाता तो सारी ज़िंदगी अब अपने आप को माफ़ ना कर पाती। पोती की दिल दहला देने वाली बात पर बेचारी दादी हक्का बक्का थी। क्यों बूढ़ी दादी की जान सूली पर लटकाती हो? जानती भी हो पहले एक दिल का दौरा पड़ चुका है, ऊपर से तुम्हारी मरने की बातें। ज़रा पता तो चले हुआ क्या है। आपके लाडले ने मेरे विश्वास पर पाँव रख दिया था, दम घुटने लगा था मेरा। आज विश्वास पर पाँव रखा, कल को मेरे गले पर हाथ रख दिया तो। दुल्हन बनी बल्कि इसको भरी महफिल में दादी की तरफ से धमोका पड़ गया था। वो सी सी करते हुए परे हुई थी। शर्म करो बल्किस, बेचारे का बेध्यानी में पैर पड़ गया होगा। वैसे भी तुम्हें तो इसके पैर धो धो कर पीने चाहिए। देखो तो ज़रा कितना बीबा प्यारा लग रहा है मुराद। मेरा दिल तो इसकी बलाएं लेते हुए नहीं थक रहा। वैसे भी कितनी बार समझाया है तुम्हें कि बचपना छोड़ दो, अब बड़ी हो गई हो तुम। अब तो शौहर वाली भी हो गई हो तुम। शौहर वालियों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। ससुराली घर माँ बाप के घर जैसा नहीं होता, ना ही वहाँ के रिश्ते ऐसे होते हैं। अब चुप की होकर बैठी रहो, मैं कोई शिकायत ना सुनूं। दूसरी तरफ दूल्हे मियाँ शिकायत लेकर अपनी नानी के सर हो चुके थे। सारे में गरारा संभालते हुए शादाओं फरहां घूम रही थी। क्या हुआ है मुराद, तुम क्यों इतने बावले हुए फिर रहे हो? मुराद को उनकी बेनियाजी पर जी भर कर गुस्सा आया था। स्टेज की तरफ नज़र उठी थी तो घूंघट भी इसी तरह मुतवज्जा नज़र आ रहा था। यकीनन वहीं से बैठी उनकी तरफ ही नज़रें गाड़े हुए थी। ये लड़की ढूंढी है आपने मेरे लिए, हरकतें देखी हैं आपने इसकी। इससे कहीं ज़्यादा समझदार तो पालने में पड़ा हुआ बच्चा होगा। मुझे लगता था मेरे घर वाले बेवकूफ़ हैं। नानी, आपने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। कहा भी था आपसे लड़की संजीदा समझदार पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और इन मोहतरमा में मुझे ऐसी कोई खूबी दिखाई नहीं देती। लाल भबो का चेहरे के साथ मुराद अली परेशान बेजार नज़र आता था। नानी ने प्यार से नवासे को सेहरे को संवारा था। पालने में पड़ा हुआ बच्चा तो खुद है मुराद। मैंने दुनिया देखी है,
ایک نظر میں انسان پرکھ سکتی ہوں۔ پردیسیوں کے ساتھ گزارا کرنے والی عورت بلقیس جیسی ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت چنچل، تھوڑی بہت نٹ کھٹ اور تھوڑی بہت سمجھدار۔ تم پردیسی ہو، تمہارا انسان پرکھنے کا طریقہ اور ہے، نفع نقصان کے سودے میں پڑ جاتے ہو۔ وہ جو اسٹیج پر بیٹھی ہے نا، تمہاری نکاح میں آ چکی ہے، گھونگھٹ اٹھا کر دیکھو، کیسی روشن پیشانی اور ستارہ آنکھیں ہیں اس کی۔ ایسی لڑکیاں جان دے دیتی ہیں، عزت نہیں جانے دیتی۔ سارے وہم نکالو دل سے اور نئی زندگی شروع کرو۔ نانی نصیحت کر کے ہجوم میں رول مل گئی اور وہ فوٹو کھنچوانے کے لیے دلہن کے ساتھ اسٹیج پر پوز دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا سارا محلہ فوٹو سیشن کے لیے امڑ آیا ہو۔ ساس اور سسر نے مراد کو VIP پروٹوکول دیا تھا، سالیاں چاروں طرف گھیر کر کھڑی تھیں۔ نکاح کے بعد کسی کو خیال آیا تھا اور پاس بیٹھی دلہن کا گھونگھٹ الٹ دیا گیا تھا۔ نکاح کے وقت رونے سے آنکھوں کا کاجل پھیل گیا تھا۔ سرخ پشواس، روشن پیشانی، ستارہ آنکھوں والی دلہن بلقیس عرف بلو کتنی عام سی لگتی تھی، اور وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ خاصا۔ دنیا کو یہی آتا تھا، انسانوں کو تولتی رہتی تھی۔ اب بھی یہی کیا گیا تھا۔ دنیا کے ترازو میں مراد علی وزنی تھا اور بلقیس کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی نظریں تھیں، جس کا اپنا کھرا کھوٹا پیمانہ تھا، اور دوسری طرف وہ تھی، کہنے والوں کے مطابق، کارنس پر رکھی ہوئی ایک بھولی بھٹکی ہوئی معمولی سی چیز، مگر کون جانے، کس کو خبر، وہ کیا تھی، وہ کیوں تھی، مگر بلکہ اس کو اب کہیں جا کر خبر ہوئی تھی کہ اس کا سسرال بھی کسی مویشی منڈی سے کم نہیں تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ، بھانت بھانت کی آوازیں، نندے اور دیورانیاں اسے ایک کم روشنی والے اندھے سے کمرے میں چھوڑ کر باہر کہیں گم ہو چکی تھیں۔ بھوک الگ لگ رہی تھی، پیاس سے بھی برا حال تھا۔ پہلی بار اسے دادی کی کہی گئی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھیں کہ سسرال ایک عجیب سی جادو نگری ہوتا ہے، لمحوں کیا پلوں میں انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ شاید اس گھر کے لوگوں کو اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے کی عادت تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرے میں کھانا سجائے نانی اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹرے میں نان، قورمہ اور زردہ سجا ہوا تھا۔ بھوکوں ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ نانی بس مسکراتی رہی۔ میں جانتی تھی تمہیں بھوک لگی ہوگی، تمہاری دادی نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے، خاص تاکید کر کے کہا تھا، بلکہ اس بھوک کی بہت کچی ہے، کبھی کبھی تو راتوں کو اٹھ کر بھی کھانا کھاتی رہتی ہے۔ نانی کی بات پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ بھوک اسے سب کچھ بھلا دیتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سسرال کی جادو نگری تھی جہاں بھولے ہوئے سارے سبق یاد آ جایا کرتے ہیں۔ نانی 3-4 نصیحتیں کرنے، اپنی اکٹھی 4-5 بیماریوں کے بارے میں اسے آگاہ کر کے چلی گئی تھی۔ کمرے میں گلابوں کی عجیب سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ شاید سیج سجانے والے دن کے پہلے حصے میں ہی اپنا کام ختم کر کے چلے گئے تھے۔ اب کمرے میں سرخ گلابوں کی خوشبو نے عجیب سا حبس پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ کمرے میں کسی نے کوئی شیطانی قسم کا کلاک سجایا تھا جس کی آواز بہت خوفناک تھی۔ کچھ لمحے برداشت کے بعد بیٹ کا سہارا لے کر بلقیس نے وال کلاک اتارا، اس کے سیل نکالے اور اس کو احتیاط سے بیٹ کے نیچے پھینک دیا۔ اب بھی آواز آنا بند نہ ہوئی۔ بیچاری کو خبر ہوئی یہ آواز شیطانی وال کلاک کی نہیں، کہیں باہر سے آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے آپ سے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ تب ایک کھٹ سے دروازہ کھلا اور سعودی عرب سے آیا ہوا دولہا اندر داخل ہوا۔ ہلکی زرد روشنی میں کاٹن کے کپڑے مڑ چکے تھے، چہرے پر تھکان کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ دائیں آنکھ پر جما رکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی آنکھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی بلقیس کو اس کی پریشانی کا کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا۔ سب خیریت تو ہے نا جی؟ اپنی الجھن میں مبتلا دولہا جیسے ایک پل کے لیے ڈر سا گیا تھا۔ آنکھ کی تکلیف نے یہ تک بھلا دیا تھا ایک عدد دولہا ہے اور اس کے کمرے میں ایک عدد دلہن بھی موجود ہے۔ اس نے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا تھا جو اپنا گھونگھٹ اتارے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے کہ آنکھوں کا پھیلا ہوا کاجل اب ٹھکانے پر تھا۔ سہرے کا کوئی تار آنکھ میں لگا ہے، مسلسل پانی آ رہا ہے۔ مراد کے لہجے اور تکلیف پر وہ جیسے دھیرے سے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ اس کے بالکل پاس آ کر کسی ماہر طبیب کی طرح معائنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ آپ کو تو گہری چوٹ پہنچی ہے جی، ساری آنکھ لال ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی سوج بھی آ گئی ہے، کیا ضرورت تھی صحرا سجانے، ہیرو بن کر آنے کی؟ مراد ہکا بکا نئی نویلی دلہن کو دیکھے جا رہا تھا جس کی زبان کے آگے واقعی کوئی خندق تھی۔ آپ رکیں ذرا، میں فریج سے برف لے کر آتی ہوں۔
बर्फ़ की टकोर से ही ठीक होगी ये और आपको आराम आएगा। मुराद अली बिस्तर पर बैठा रह गया था और वो खुशबू के झोंके की तरह कमरे से बाहर निकल गई थी। घर में कुछ कमरों की रोशनियां अभी भी जल रही थी। शरीर बच्चे सो चुके थे, बुजुर्ग अपनी दवाइयाँ खाकर खर्राटे ले रहे थे। कुछ कमरों से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बावर्ची खाना ढूंढ रही थी। तभी सामने ही किसी कमरे से कुछ अल्फाज बल्कि इसके कानों में पड़े थे। अरे भाई, बाहर गया है तो हम पर कौन सा एहसान किया है। लोग सऊदिया जाते हैं, सोने की ईंटें लेकर आते हैं और यह हमें खजूर पानी भेजकर खुश कर देता है। ख्याल रहे शादी हो गई है, अब ऐसा ना हो कि जोरों का ग़ुलाम ही बनकर रह जाए। तभी इसके लिए ऐसी लड़की ढूंढी है। भाई साहब, ऐसा तो मत कहें। पिछले 4 सालों से मुराद ने ही घर का सारा सिस्टम सीधा किया है। आप लोगों को कारोबार करके दिया है और सोना जेवर भी बहुत दिया है। ये बात तो सारी दुनिया जानती भी है और मानती भी है। अब फ़िक्र की बात तो ये है कि अब इसकी कमाई में एक हिस्सेदार और आ गई है। बस अब हमें कुछ संभल कर चलना पड़ेगा। सऊदिया वाले की हिस्सेदार दीवार थाम कर खड़ी थी। कितनी अजीब होती है ना इस ससुराल की दुनिया, और रिश्ते भी, मतलबी, खुदगर्ज और भी पता नहीं क्या क्या। बावर्ची खाना ढूंढ कर फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर वो अपने दूल्हे के सिरहाने बर्फ़ की टकोर करती रही थी और बहुत कुछ सोचती रही थी। मुराद अली के लिए वो शादी एक समझौता थी और बस। वो भी अजीब सा मर्द था, चुपचाप सा, खामोश सा, घर का बड़ा नहीं था, फिर भी सारी जिम्मेदारियां इसी के सर थीं। और यही वजह थी कि शादी के 1 हफ्ते बाद जहाज़ पर सऊदिया रवाना हो गया था। एक ऐसी शादी जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जान ही नहीं पाए थे। क्या ऐसी होती हैं शादियाँ? बल्कि इसके हाथों की मेहंदी फीकी पड़ती गई। अम्मा अब्बा को हमेशा वो सब अच्छा बताती रही। 1 साल बाद बल्कि इसके हाथ 2 जुड़वा औलादों ने जन्म लिया था, गुड़िया और अद्दी। मुराद अली ने नानी की वफ़ात पर जब चक्कर लगाया था तब ही इसकी औलाद भी दुनिया में आई थी। एक तरफ नानी का जनाजा था, दूसरी तरफ अस्पताल में दर्द से तड़पती बल्किस। मुराद अली एक बार फिर से सऊदिया लौट गया था। फिर इसने पलटकर 12 साल तक कोई ख़बर ना ली। कभी कभार फ़ोन पर रब्ता हुआ करता था। घर वाले सोने की ईंटों की बात करते थे, बल्कि इस अजवा खजूरों और आबे ज़मज़म की, जो वो अपने सारे मोहल्ले सहेलियों में बांटा करती थी। कितनी अजीब औरत थी ना बल्किस उर्फ बिल्लो। मुराद अली के लिए वो आम थी, बहुत ही आम। किसको खबर, कभी कभी खाक भी आँख का काजल बन जाती है। आने वाले दिनों में जब तक मुराद अली पाकिस्तान रहा, वो किसी तितली की तरह इसके आसपास मंडलाती रही थी। नंदे और देवरानियाँ इसे देखकर सरगोशी में बातें किया करती थीं और ये सरगोशियाँ किसी बाज गश्त की तरह मुराद अली की समातों में भी गूंजती रहती थीं। अरे भाई, इस लड़की के तो वारे न्यारे हो गए हैं। इसका ख़ानदान भी हल्का सा है, शक्ल सूरत भी कुछ ख़ास नहीं है, सुनाए पढ़ी लिखी भी नहीं है। मुराद अली ससुराल जाकर भी एक अजनबी इंसान बन जाया करता था। 4 सालियाँ खातिर तवाज़ो के लिए पेश होती, मगर वो नख़वत भरे अंदाज में सर झटक देता था। बल्कि इस दुहाई लेकर दादी के पास आती थी। ज़रा देखें तो कैसा चेहरा लेकर बैठे हैं, सर्दो सपाट। आज तक मुझको देखकर नहीं मुस्कुराए। दादी तसल्ली देने वाले अंदाज में कहती थी, वहम मत किया करो, मर्द ऐसे ही अच्छे लगते हैं, समझदार और संजीदा। हर वक्त खीख ही मर्दों को ज़ेब नहीं देती। सादा और भोली बल्कि इस दादी की बातों को दुपट्टे के पल्लू से बांध लेती थी। फिर इसकी ज़िंदगी में कभी भी मुराद अली की तरफ से कोई मुस्कुराहट, कोई कहकहा, कोई खीखी नहीं आई। दोनों का बस चुप का रिश्ता था, एक दूसरे से अनजान। ये शादी किसी गुड्डे गुड़िया की शादी जैसी ही थी। मुराद अली को सऊदी अरब आए हुए इतने बरस हो चुके थे। इसे आज भी वो दिन याद था जब इसने पहली बार रियाज के हवाई अड्डे पर कदम रखा था। जहाज़ का दरवाज़ा खोलते गर्म हवा का एक झोंका इसके चेहरे से टकराया था, जैसे किसी ने आग की भट्टी का दहाना इसके सामने खोल दिया हो। पाकिस्तान की नम आलूद मिट्टी और आमों की खुशबू से निकलकर इस बेआबो गया सरजमीन में आना इसके लिए महज जोग्राफियाई तब्दीली नहीं था, एक मुकम्मल ज़िंदगी का उलट जाना था। शुरू के दिनों में इसे लगता था जैसे सूरज यहाँ कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में। जब दर्जा हरारत 50 के आसपास पहुँच जाता तो तामीराती साइट पर खड़े होकर लोहे की सलाखें पकड़ना भी किसी सज़ा से कम ना होता। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मज़दूर था। सुबह फजर से पहले आँख खोलती कैंप के तंग कमरे में 6-7 आदमियों के साथ रहना इसकी आदत बन चुकी थी।
लोहे के 2 मंजिला पलंग, एक छोटा सा पंखा जो गर्म हवा ही को घुमाता रहता, और दीवार के साथ रखा एक पुराना फ्रिज जिसमें ज़्यादातर पानी की बोतलें और कभी कभार बचा हुआ खाना होता। कंपनी की बस इन्हीं शहर के मज़ाफ़ात में ज़ेरे तामीर इमारतों तक ले जाती। दिन भर धूल, सीमेंट, पसीने की मिली जुली बो इसके वजूद से लिपटी रहती। कभी सुपरवाइज़र की सख्त आवाज़, कभी वीज़ा और अकामा की फ़िक्र, कभी तनख्वाह की ताख़ीर, ये सब इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। शाम को जब वो काम से लौटता तो कैंप के बाहर एक छोटी सी दुकान से अरबी रोटी, हुमस या फलाफिल ले आता। शुरू में इसे यहाँ का खाना फीका लगता था। इसे अपनी माँ के हाथ की दाल चावल, गर्म रोटी की खुशबू याद आती थी। कभी कभार वो इसके पाकिस्तानी साथी मिलकर देगची में चावल और सालन बना लेते तो कैंप के कमरे में एक लम्हे को यूँ लगता जैसे पाकिस्तान का कोई कोना वहाँ बस गया हो। लेकिन वो आर्जी खुशबू जल्दी ख़त्म हो जाती और हकीकत फिर सामने खड़ी हो जाती और परदेश में है महज कमाने के लिए। अरबी के चंद जुमले इसने सीख लिए थे, काम चलाने के लिए काफ़ी, मगर दिल की बात कहने के लिए ना काफ़ी। बाज़ारों में, मसाजिद में, सरकारी दफ्तरों में अक्सर ख़ुद को अजनबी महसूस करता। सऊदी अरब की रेतली आंधियाँ भी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। कभी अचानक आसमान पीला पड़ जाता, हवा में मिट्टी भर जाती और आंखें खोलना मुश्किल हो जाता। ऐसे में सोचता कि इसके शहर में शायद हल्की सी बारिश हो रही होगी, बच्चे गलियों में खेलते होंगे और इसकी अम्मा सहन में कपड़े समेट रही होंगी। हर महीने तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भेज देता, अपने भाइयों की तालीम का कारोबार और घर के अखराजात के लिए। इसकी अपनी ख्वाहिशें रफ्ता रफ्ता पस मंज़र में चली गईं। नए कपड़े, अच्छा मोबाइल, सैर व तफरीह, यह सब इसके लिए गैर ज़रूरी चीज़ें बन चुकी थीं। अगली सुबह वो फिर उठता, वज़ू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और ख़ुद को यही तसल्ली देता कि सब वक्ती है, एक दिन वो लौटेगा अपने वतन, अपनी मिट्टी, अपने लोगों के पास। लेकिन सच ये था कि परदेस इंसान को बदल देता है। वापस भी लौटे तो पहले जैसा नहीं रहता। मुराद अली भी शायद वो सादा सा गांव का नौजवान नहीं रहा था। अब वो एक ऐसा आदमी था जिसके चेहरे पर धूप की सख्ती और आंखों में हिजरत की नमी हमेशा के लिए बस चुकी थी। और अब शादी के बाद तो ज़िंदगी मज़ीद अजीब हो गई थी। घर से अक्सर कभी कभार बल्किस फ़ोन कर लेती थी। इसे बातें करना नहीं आता था, या इससे बात करने के लिए कोई मौजू नहीं था। इधर उधर की बातें की जाती थी। अद्दी और गुड़िया जुड़वा हैं, दोनों आप पर गए हैं। गुड़िया हंसती है तो गाल में गढ़ा पड़ता है। चुपचाप सुनता रहता था। आसपास के साथी जब भी पाकिस्तान से आते थे अजीब रोने रोते थे। रिश्ते मतलबी हो गए थे, यहाँ तक कि बीवी औलादे भी। मुराद अली को भी वो मैट्रिक फेल बीवी बाकी लोगों की बीवियों जैसी ही लगती थी, बल्कि इसको फ़ोन के पार की मौजूदगी से वहशत होती थी। सुने जी, आप कब पाकिस्तान आएंगे? क्यों, तुम्हें क्यों इतनी फ़िक्र हो रही है मेरी वापसी की? वो चिढ़ जाता था, वो उधर बौखला जाती थी। वो नहीं जी, हमारी गुड़िया ने बोलना शुरू कर दिया है ना, आपका नाम लेकर बार बार बुलाती रहती है। औलाद आंखों के सामने नहीं थी, आंखों के सामने मौजूद ना होने वाले रिश्ते भी फासलों की नज़र हो जाते हैं। सुने जी, वो ना आप अपनी एक फ़ोटो ज़रूर भेजना खाना काबा के सामने जाकर। वो चौंक जाता था, बल्कि इसके लहजे में बड़ी अकीदत हुआ करती थी। देखने में खाना काबा कैसा लगता है? अच्छा ही लगता होगा। मैं भी क्या क्या सवाल करती हूँ, पागल जो हूँ। अल्लाह का घर है, सोना ही लगता होगा ना जी। कहते हैं पहली बार अल्लाह का घर देखो तो रोना आता है, रिक्कत तारी हो जाती है। क्या वाकई ऐसा होता है जी? मुराद अली के लिए सऊदीया परदेस का हवाला था, और बल्किस के लिए इसके अल्लाह का घर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। मैंने आपकी भेजी हुई अजवा, खजूर और आब ज़मज़म सारे मोहल्ले में बांटा है। सभी खुश हो रहे थे, कह रहे थे मुराद को कहना हमारे लिए दुआ किया करे, वो भी खाना काबा जाकर। घर वालों की तरफ से बल्कि इसकी शिकायतें बढ़ रही थी कि बस खाने पीने की फ़िक्र में मुब्तला रहने वाली औरत है, बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती, लोर लोर फिरती रहती है। वो सब बातों का यकीन कर लेता था। बीए पास मुराद के पास अक्ल मैट्रिक फेल बल्किस जितनी भी नहीं थी। बीए पास मुराद के पास अक्ल मैट्रिक फेल बल्किस जितनी भी नहीं थी।
مراد علی کو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ انسان نہیں، محض ایک حوالہ نمبر ہے، ایک ایسا نام جس کے ساتھ ہر مہینے رقم جڑی ہوتی ہے۔ ریاض کی اس تپتی زمین پر وہ صبح سے شام تک لوہے سیمنٹ کے درمیان پسینہ بہاتا، رات کو جب موبائل ہاتھ میں لیتا تو اس کے وجود کی ساری تھکن ایک عجیب سی اداسی میں بدل جاتی۔ اس کے گھر سے آنے والی کالوں میں اب حال احوال کم، حساب کتاب زیادہ ہوتا تھا۔ اس مہینے کتنے بھیجے؟ بچوں کی فیس بڑھ گئی ہے، چھت کی مرمت کرانی ہے، بھائی کی دکان میں بھی تھوڑا ہاتھ بٹھا دو۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ وہ خود کیسا ہے، اسے بخار تو نہیں، اس کی کمر کا درد کیسا ہے، پچھلے مہینے سے مستقل اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی کھال جو دھوپ اور سیمنٹ سے اترنے لگی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بات ہمیشہ روپے پر آ کر ختم ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا جیسے اس کے الفاظ کال کے دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں اور صرف اس کے بھیجے ہوئے پیسے ہی زندہ رہتے ہیں۔ بہنوں کو اپنے بچوں کے لیے سونے کے زیور کے تحفے چاہیے ہوتے تھے، بھائی اپنے کاروبار بڑھانے کی بات کرتے تھے، اماں ابا بھی عمر پوری کر کے چل دیے تھے اور وہ پاکستان نہ جا سکا تھا، گھر کا بٹوارا ہو گیا تھا، سب نے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے تھے، بلکہ اس کو 3 مرلے دے کر کنارے کر دیا گیا تھا۔ بھائی نے گھر کے لینٹر ڈلوانے کی بات کی تھی، جانے کون سا گھر تھا، کس کا گھر تھا، وہ پوچھ بھی نہیں سکا تھا، مگر اس کے دل میں جیسے کسی نے مٹھی بھر ریت ڈالتی ہو۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس مہینے کمپنی نے تنخواہ دیر سے دی ہے، اوور ٹائم کے پیسے ابھی تک نہیں ملے، ایک ساتھی مزدور گر کر زخمی ہو گیا تھا، اس کی مدد کے لیے سب نے چندہ کیا تھا، مگر وہ خاموش رہا، اسے معلوم تھا اس کی وضاحتیں شاید ضرورتوں کے شور میں دب جائیں گی۔ ایک رات اس نے ہمت کر کے اپنی بہن سے کہا تھا، کبھی پوچھ لیا کرو کہ میں کیسا ہوں۔ دوسری طرف چند لمحے کی خاموشی رہی، پھر جواب آیا تھا، ہم سب تمہارے لیے تو فکر کرتے ہیں، پیسے نہ ہوں تو گزارا کیسے ہوگا؟ یہ جملہ سادہ تھا، اس کے اندر ایک گہرا خلا چھوڑ گیا۔ کیا واقعی اس کی فکر صرف پیسے سے جڑی ہے؟ کیا اس کا وجود صرف ایک ذریعہ ہے؟ اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی جو کہا کرتے تھے، پردیس جاؤ گے تو لوگ تمہیں نوٹوں میں تولیں گے۔ اس وقت وہ ہنس دیا تھا، آج وہ ہنسی کہیں کھو چکی تھی، آج اپنے رشتے ہی اسے تول رہے تھے۔ وہ جانتا تھا گھر والے ظالم نہیں، مجبور ہیں، مہنگائی، بچوں کی تعلیم، معاشرتی دباؤ، یہ سب حقیقتیں تھیں۔ حقیقت یہ بھی تھی کہ ان سب کے درمیان مراد علی کہیں گم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے خواب، اس کی تھکن، اس کا دل، سب پس منظر میں چلے گئے تھے۔ ہر مہینے رقم بھیج کر جیسے اپنے وجود کا ثبوت دیتا تھا کہ ہاں وہ زندہ ہے، کام کر رہا ہے، ذمہ دار ہے۔ پردیس نے اسے صرف جسمانی طور پر نہیں تھکایا تھا بلکہ جذباتی طور پر بھی نچوڑ لیا تھا۔ وہ ایک ایسا درخت بن گیا تھا جس کی جڑیں پاکستان میں تھی اور تنے پر سعودی عرب برس رہے تھے، پھل سب کو مل رہے تھے، درخت کی چھال چھل رہی تھی۔ مراد علی جانتا تھا شاید اس کی قربانیوں کا مکمل احساس کسی کو کبھی نہ ہو، پھر بھی اگلی صبح اٹھے گا، کام پر جائے گا، اپنی خاموش محبت کو ایک بار پھر رقم کی صورت میں گھر بھیج دے گا، کیونکہ یہی اس کا نصیب تھا، شاید یہی اس کی محبت کی سب سے بڑی دلیل بھی۔ دوسری طرف بھائی بہنوں کے بچے بڑے ہو رہے تھے، کامیاب ہو رہے تھے، کاروبار بڑھ رہے تھے، گھر سج رہے تھے، اور بتانے والے ہمیشہ مراد علی کے کانوں میں یہی زہر انڈیلتے تھے کہ بلکہ اس نے اس کا گھر تباہ کر دیا ہے، بچوں کی تربیت میں ڈنڈی ماری ہے، اپنے میکے والوں کو کھلا پلا رہی ہے۔ کاش کبھی مراد علی کو وہ کم فہم کم عقل عورت سمجھ میں آ جاتی جو جب بھی ضرورت پڑتی تھی کھجورے اور پانی ہی مانگا کرتی تھی، اسے سونے کی اینٹوں کی کوئی چاہ نہیں تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہر پردیسی ہر منظر، ہر بات، ہر رشتہ دیکھنے کے لیے کسی تیسری آنکھ کا محتاج ہوتا ہے، اور تیسری آنکھیں کہاں سارے سچ بتاتی ہیں؟ یہ تیسری آنکھیں ہمارے خاندان کی کچھ خود غرض رشتوں کی ہوتی ہیں جو ہمیں اندھا کر دیتی ہیں۔ دنیا نے اس کے سامنے صرف خسارے رکھے تھے، اور اب زندگی نے 13 سال پردیس میں کاٹنے کے بعد وہ اپنی تھکن سمیت پاکستان لوٹ رہا تھا، جہاں اس کا گھر تھا، شاید تھا بھی یا نہیں تھا، ایک بد دماغ، بد سلیقہ بیوی اور بدتمیز بچوں کی ماں بھی موجود تھی۔ ایئرپورٹ کی جگمگاتی چمچماتی ہوئی روشنیوں کے بیچ مراد علی نے بڑے بھائی کو گلے سے لگایا تھا۔ ابا اماں کی جدائی یاد آ گئی تھی، آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ وہ اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے جیسے ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر آیا تھا، کچھ فاصلے پر ایک ٹیکسی رکی تھی اور بلکہ نے قدم باہر نکالے تھے، کچھ قدم کا فاصلہ بھی جیسے میلوں کے فاصلے پر محیط ہو گیا تھا۔ مراد علی کی آنکھیں وہیں ٹھہر سی گئی تھیں،
ग्लासेस लगाए, फूलदार लिबास पहने, सर पर से गिरता हुआ दुपट्टा बार बार सलीके से जमाती हुई वो वही थी, तमकनत और एक वकार के साथ। वो अपने दाएं बाएं दोनों बच्चों के लिए एक शान से मुराद अली की तरफ आ रही थी। गुड़िया और अद्दी माँ के कद बराबर आ रहे थे। दोनों के हाथों में महकते हुए गुलाबों के गुलदस्ते थे। मुराद अली बकौल ज़माने के बिगड़े हुए पूरी सोहबत का शिकार औलाद को पहली बार देख रहा था। तीनों इसके पास आकर रुक गए थे। वो वही थी, रोशन पेशानी, सितारा आँखों वाली। जैसे एयरपोर्ट की सारी रोशनियाँ इसकी आँखों के सामने हीज थीं। इसने धीरे से बच्चों को आँख से इशारा किया था। फूलों समेत बच्चे दौड़कर मुराद अली से लिपट गए थे। मुराद अली भुरभुरी मिट्टी हो गया था। ये लम्स, ये इसका अपना खून। दिल की धड़कनें तेज़ और तेज़ होती चली गईं। अद्दी तो इसके बराबर आ गया था। वो तो आज भी इसे छोटा बच्चा ही समझता था। दोनों बच्चे खुशबुओं से महकते हुए साफ़ सुथरे यूं दिखाई देते थे जैसे मुराद अली की औलाद ही ना हो। धीरे से आगे बढ़ी थी। आप खैरियत से पहुंच गए? वो बस सर ही हिला सका था और वो भैया से बात कर रही थी। आपने तो इतने महीनों से घर पे आना ही छोड़ दिया है। मैं और बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। जाने क्यों भैया नज़रें चुरा गए थे, वो गड़बड़ाए थे। अब मुराद आ गया है ना, हम सब घर वाले इकट्ठे होंगे। धीरे से अद्दी ने मुराद के हाथों से बैग संभाल लिया था। गुड़िया ने हैंड बैग ले लिया था। वो धीरे धीरे पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा मुराद, मैं चलता हूँ, तुम घर जाओ, आराम करो, फिर आपा लोगों के साथ चक्कर लगाऊंगा। भैया शायद किसी जल्दी में थे। सामने खड़ी गाड़ी का उन्होंने दरवाज़ा भी खोल लिया था। मुराद ने हैरान होकर उन्हें देखा था। भैया, ये गाड़ी? भैया एक बार फिर से गड़बड़ाए थे। बात आई गई कर देना चाहते थे। अरे अपनी है, 2 महीने पहले ली है, सेकंड हैंड ली है। मैंने भाभी से पूछा था कि मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। भाभी ने स्पेशल टैक्सी बुक करवा ली थी। वो सर हिलाकर रह गया था। अद्दी और गुड़िया गाड़ी में सामान रखने लगे थे। साथ साथ वो छोटी छोटी बातें भी कर रहे थे। कुछ फासले से उनकी हंसी सुनाई दे जाती थी। कुछ फासले पर शायद फ़ोन कॉल में मसरूफ़ सी नज़र आती थी। और ऊंची हील पहने, लंबे घने बाल खोले, वो कितनी बदल गई थी। इसके वजूद से एक वकार और ग्रेस सा महसूस होता था। जी अब्बा, खैरियत से पहुंच गए हैं? नहीं नहीं, खाना फिर खाएंगे, आज मैंने घर पर सब कुछ बना लिया है। फ़ोन ख़त्म करके मुराद की तरफ लौटी थी, जो पाकिस्तान की फ़ज़ाएं महसूस कर रहा था। गहरी गहरी सांसें ले रहा था। माजी का रोलर कोस्टर आंखों के सामने चलने लगा था। घर चलें? वो जैसे इसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछ रही थी, बल्कि इसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक जैसे मुराद को ख़ास तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई थी। घर गायब दिमाग से लग रहा था, जैसे कहीं खो सा गया हो। घर तो कब का तकसीम हो गया था। सब अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो गए थे। और बाद में भैया ने बताया था कि उन्होंने 3 मरले पर इसके हिस्से का मकान डलवाया और इसके लिए मुराद से रकम भी वसूल कर चुके थे। वो ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया था। दोनों बच्चे पीछे माँ के पास बैठे थे। शायद सरगोशी में माँ से किसी ख़ास राज़ो नियाज में मसरूफ़ भी थे। बार बार बाप की तरफ देखते थे। मुराद ने चोरी बहुत बार पकड़ी थी। आखिर घंटों की मुसाफत के बाद वो एक घर के सामने रुक गए थे। सुनहरी शाम पिघल रही थी। वो टैक्सी से बाहर आ गया था। सामने 3 मरले पर एक शानदार सी इमारत नज़र आती थी। हैरान सा खड़ा रह गया था। गुड़िया और अद्दी फिर से सामान संभालने वाली ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ़ थे जब वो मुराद के पास आकर खड़ी हो गई थी। ये घर? जी, हमारा घर है। आप इतने अरसे बाद आए हैं ना, बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। बदल तो बहुत कुछ गया था। चारों तरफ देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। छोटे से गेट के अंदर बागीचा सा था, जहाँ बोगनवेलिया की बेलें और छोटे छोटे पाम भी लगे हुए थे। गमलों में नारंगी, पीले गेंदे के फूल भी खिले हुए थे। अंदर दाखिल होते ही मिले जुले फूलों की खुशबू खुश आमदीद कहती थी। लाउंज में दाखिल हुआ था और ठिठक गया। सारे में जिप्सम लगी थी। एल्युमिनियम की खिड़कियाँ खुली हुई थीं और सुरमई रंग के आरामदेह सोफ़ा सेट बिछे थे। बीच में शीशे की मेज़ पड़ी थी। घर का पेंट बहुत हल्के रंगों के साथ आंखों को भला लगता हुआ सा था। सामने ओपन किचन था। वो चुपचाप धीरे से लाउंज के सोफ़े पर बैठ गया था। लंबी फ्लाइट ने इसे थका दिया था। आंखें बंद करके वहीं लेट सा गया था। बल्कि इस बच्चों को कुछ हदायत देते हुए किचन की तरफ मुड़ गई थी। मुराद अली को अजीब सा एहसास हुआ था। 2 हाथों ने धीरे से बहुत मोहब्बत से इसके पैरों को जूतों से आज़ाद किया था। आंखें बंद किए लेटा रहा था। अब वो 2 हाथ इसकी जुराबें उतार रहे थे। इसने धीरे से आंखें खोली। वो गुड़िया थी, इसकी औलाद, इसका खून।
अद्दी पास बैठकर इसके कंधे दबाना शुरू हो गया था। सुकून धीरे धीरे मुराद के अंदर उतरना शुरू हो गया था। जूस पी लें, ताज़ा बनाया है, थोड़ी देर तक खाना भी लगा दूँगी। बल्कि इससे गिलास लेकर जूस के सिप लेने लगा। लाउंज में किचन से कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुने, आपने फ्रेश होना है तो अलमारी में आपके सूट लगे हुए हैं। अद्दी इसे कमरे में ले आया था। हवादार खुले कमरे, साफ़ सुथरे कमरे, हर तरफ मुकम्मल सलीका और तरतीब थी। और शायद इस पूरे घर में बेतरतीब मुराद अली की ज़ात थी। और बस इसने अलमारी के पट खोले थे। सामने हैंगरों में उसके नाप के मुताबिक 5-6 नए सिले हुए इस्त्री शुदा सूट लटक रहे थे। कॉटन के सूट कल्फ लगे थे। वो हैंगर लगे खड़े का खड़ा रह गया था। अम्मी ने सिलवाए हैं आपके लिए। अद्दी ने बाप को मुत्तला किया था। वो अब तौलिया शैम्पू लेकर सामने खड़ा था। मुराद के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी। कितने बड़े हो गए हो तुम, मेरे बराबर आ रहे हो। मुराद के टिकटिकी बांध कर देखने पर वो जैसे शर्मा सा गया था। मुराद फ्रेश होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के शीशे में ख़ुद को देखता रहा था। आँखों के गिर्द हल्के थे, बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी और हाथों पर ज़ख्मों के बहुत सारे निशान। दुनिया ने तो हमेशा से यही बताया था कि वो पाकिस्तान आया भी तो एक झगड़ालू कम फहम औरत इसकी मुंतज़िर होगी। और बड़े होते हुए 2 बदतमीज़ बच्चे, घर भी बदहाल होगा। कौन जाने कि क्या हो गया था। खाने की मेज़ पर बैठा हुआ गुड़िया बल्किस को खाना सजाते हुए देखता रहा था। मेज़ आहिस्ता आहिस्ता भरती जा रही थी। चिकन कढ़ाई, मटन निहारी, बिरयानी, कबाब, सलाद, फ्रूट ट्राइफल के अलावा भी बहुत कुछ था। आपको कुछ भी चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अगर कुछ और खाने का दिल हो तो भी बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। पहले निवाले के साथ इसे पता चल गया था कि मेज़ पर सजाए गए रिस्क किसी अनाड़ी ने नहीं बनाया था। ये सब घर पर बनाया है। अद्दी और गुड़िया के लिए प्लेट बनाते हुए इसने सर उठाया था। जी हाँ, सब घर पे बनाया। अच्छा नहीं है क्या? बार बार ढलकता हुआ शिफॉन का दुपट्टा वो गिरने से बचा रही थी। बालों की कुछ लटें अब चेहरे के गिर्द मंडला रही थी। फिक्रमंदी से पूछ रही थी, नहीं नहीं, सब बहुत अच्छा है। रगबत से खाना खाने में मसरूफ़ हो गया था। बच्चों को इसके सामने डांट कर खाना खाने पर मजबूर कर रही थी। ख़बरदार, जो तुमने प्लेट में कुछ छोड़ा तो। हमेशा तुम यही करते हो, खाने पीने में डंडी मारते हो। पढ़ाई में दिमाग लगता है, जिसम में ताकत होगी तो कुछ पढ़ सकोगे। वो किसी तमाशाई की तरह ये सब देख रहा था। भैया और आपा लोग तो यही कहते थे, इसकी औलाद पढ़ाई लिखाई में भी कोरी थी। शायद ठीक ही कहते होंगे। वो दोनों खाना खाकर किसी कमरे में चले गए थे। वो अब धीरे से बर्तन समेट रही थी। बालों को जोड़े में लपेट चुकी थी। कितनी तेज़ी से और सलीके से वो काम करती थी। कैसी हो तुम? वॉश बेसन के आगे प्लेट धोते हुए वो रुक गई थी, जैसे सदियों बाद किसी ने हाल पूछा था। आंसू ने चेहरे पर आना शुरू कर दिया था। कौन? मैं? कॉटन के नए सूट में मलबूस सामने स्लेब से टेक लगाए खड़ा हो गया था। हाँ, तुम? मुझे क्या होना है भला? ठीक हूँ, खुश हूँ। मैंने सिर्फ ठीक होने का पूछा था। दूसरा सवाल खुशी का होना था। सोचा पहले ही जवाब दे दूँ। पानी की धार से प्लेटें धुलने लगी थीं। तुम कितनी बदल गई हो बल्किस। गहरे लहजे और अंदाज पर पहली बार वापस मुड़ी थी। सितारा आंखों में पानी फैल गया था धीरे धीरे। क्या अब भी ना बदलती? दादी सही कहती थी, ससुराल जादू नगरी होता है, औरत को बदल कर रख देता है। मुझे भी बदलना पड़ा। आपको क्या पता, सऊदिया में वक्त रुक गया होगा, मगर यहाँ वक्त तेज़ भागती हुई ट्रेन जैसा था। या इसके साथ साथ भागो या फिर इस तेज़ रफ्तार ट्रेन के नीचे आकर मर जाओ। और मैं बहुत डरपोक और बुज़दिल हूँ। मरने से डर लगता है मुझे। हौले हौले काँप रही थी, लरज़ रही थी। मुराद अली शशतर खड़े का खड़ा रह गया था। ये कौन सी बल्कीस थी जिसे वो नहीं जान पाया था, जिसे कोई भी नहीं जान पाया था? पहेली जैसी, मुश्किल सवालों जैसी। अगले दिन आपा और भैया लोग इकट्ठे हो गए थे और वो सुबह से ही अपने बच्चों को अपनी माँ के साथ मुसलसल मसरूफ़ देख रहा था। वो किसी फिरकी की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थी। मुराद देर से जागा था और अब फ्रेश होकर लाउंज में आकर बैठे ही था कि गुड़िया इसके सामने नाश्ता रख कर गई थी। दोनों के दरमियान खामोश मुस्कुराहटों का तबादला हुआ था। एक ऐसी बेटी जो सालों बाद अपने बाप को देख रही थी और एक ऐसा बाप जो सालों बाद अपने औलाद के वजूद को महसूस कर रहा था। सारे मेहमान दोपहर के खाने पर आन मौजूद हुए थे।
पता नहीं क्यों इसे अपने खूनी रिश्तों की मोहब्बतें अजीब सल्त सी महसूस हुई थी। कुछ तो ऐसा एहसास था जिसको वो कोई नाम नहीं दे सकता था। भैया बार बार पूछ रहे थे, मुराद मियाँ कुछ बचत भी की है या फिर सब कुछ इस घर पे उड़ा दिया है? भैया का लहजा तंजिया था। मुराद ने हैरान होकर उन्हें और उनके इस अंदाज को देखा था। आपा भी मुराद के कंधे पर हाथ रखकर शुरू हो गई थी। अरे भाई, कैसी बचत और कहाँ की बचत? मुराद ने जो भी कमाया बल्कि इसकी हथेली पर रखा। ऐसे ही तो नहीं बन जाते लशपश करते घर। ज़रा देखो तो फर्श शीशे की तरह चमक रहा है, चेहरा नज़र आता है। और किचन को देखो, फ्रिज, ओवन सब है। मैं तो कमरों में अलमारियां देखकर हैरान रह गई। बड़ी आपा की बातों ने दूर किचन में सलाद काटते हुए बल्कि इसको तकलीफ़ पहुंचाई थी। इसने दो नज़रें उठाकर मुराद को देखा था। इन नज़रों में कोई शिकायत नहीं थी, बस इस चीज़ का इजहार था कि इसने इस सालों की मुद्दत ऐसे ही नहीं काट ली। छोटे भैया को भी अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाने का मौका मिला था। अरे हमें तो खजूर पानी पर टरखाया गया है। लगता है सोने की ईंटें तो बल्कि इस भाभी के हिस्से में आई हैं। दूर खड़ी भाभी हंसती थी, बड़ी अजीब सी हंसी थी, बहुत कुछ कहती हुई, थोड़ा बहुत छुपाती हुई। खजूर पानी वसूल करने वाली के हिस्से में सोने की ईंट, जेवर का इल्ज़ाम बहुत बड़ा था। ख़ानदान भर के बच्चे पूरे घर में धक्कम पेल मचा रहे थे। मुराद को अजीब बेजारी हुई थी। बहुत सारे कांच के गुलदान टूट गए थे। अब वो किसी कमरे से मेडल्स उठाकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तभी मुराद ने गुड़िया को मेडल्स वापस लेते देखा। बड़ी आपा की नज़र पड़ गई थी। अरे भाई, क्यों डांट रही हो बच्चे को? वापस कर देगा तुम्हारा खिलौना। गुड़िया की नज़रें मुराद की तरफ उठी थीं। फुप्पो, ये खिलौना नहीं है, अद्दी का मेडल है। इसने स्कूल में पोजीशन ली थी तो तब मिला था। सब जानती हूँ मैं, जिनके पास बाहर का पैसा हो वो सारी पोजीशनें मेडल ख़रीद लेते हैं। मैं तो सच कहती हूँ मुराद, ज़रा बच्चों के स्कूल पता करना किस पानी में है। ऐसी बहुत सारी बातों के साथ वो दोपहर मुराद के लिए गुजारना बहुत भारी हो गया था। खून के रिश्ते ऐसे भी सफ़ेद हो जाते हैं। पहली बार देख रहा था। खाने की मेज़ पर बल्किस ने बहुत एहतमाम किया था। सब ने ना ना करते हुए भी खूब हाथ साफ़ किया था। बड़े भैया ने चिकन पीस उड़ाते हुए अपनी बीवी को शर्म दिलाई थी। तो मैं तो सारी उम्र खाना पकाना ना आया, बल्कि इस भाभी के हाथ का जायका तो ख़ानदान भर में मशहूर है। जो एक बार खाए उंगलियां चाटता रह जाए। वो ख़ुद भी उंगलियां चाटते हुए रग़बत से खा रहे थे। कुछ फासले पर बैठे बच्चों के लिए इसने फ़ास्ट फूड का अलग से एहतमाम किया था। बर्गर, चिप्स खाते हुए बच्चे अब पुरसकून हालत में थे। आपाएँ भी मज़े लेकर बिरयानी खा रही थी। मज़ा आ गया बल्किस, बहुत बराबर मसाला डाला है तुमने बिरयानी में। ऐसा करना, थोड़ी सी मुझे साथ पैक कर देना। मेरी सास को बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ की बिरयानी। मीठा निकालती बल्किस धीरे से मुस्कुराई थी। ढलके हुए दुपट्टे को बार बार ठीक करती थी। आप फिक्र मत करें आपा, मैंने उनका हिस्सा अलग से निकाल लिया है। आप ये मीठा लेना। मीठे के बाद सबने इलायची वाली चाय का लुत्फ़ लिया। सब चाय पीने में मसरूफ़ थे जब धीरे से मुराद उठकर किचन की तरफ आया था, जहाँ वो बहुत सारे टिफ़िन बॉक्स खाने से भर रही थी। क्या कर रही हो तुम? मुराद की बात पर वो मुतवज्जा हुई थी। मसरूफ़ियत फिर भी बरकरार रही। सबके लिए खाना पैक कर रही हूँ। मेरे हाथ का बना हुआ खाना सब शौक़ से खाते हैं। तुम बावर्ची नहीं हो कि सबके लिए खाने बनाती रहो। जो घर में मेहमान हैं उनको खिला दिया काफ़ी है। मेहमानों के घर में बैठे हुए मेहमान हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मुराद के तेज़ और गुस्सीले लहजे पर वो हंसी थी। पता नहीं क्या क्या याद आ गया था। अभी भी इसने रुख मोड़ा हुआ था। आपके रिश्ते मेरे लिए एहतराम के काबिल हैं, आप भी और आपसे जुड़े हुए रिश्ते भी। और तुम्हारे रिश्ते? इस बार वो पलटकर मुराद को देखने पर मजबूर हो गई। मुराद के लहजे में कुछ था, फ़िक्र, परवाह या फिर कुछ और। वो अपने दिल को खुश फहमियों के हवाले नहीं करना चाहती थी। मैं और मेरे रिश्ते झूठी उम्मीदों के सहारे ज़िंदा नहीं हैं। आप जाइए, अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, मैं तब तक किचन समेट लूँ। वो जाने लगा था, पलटकर फिर पूछने लगा, खाना खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है। मुराद इसकी तरफ आया था। पता नहीं क्या अजीब बात थी। वो औरत जो सालों से इसकी बीवी थी आज किसी मकनातीस की तरह बार बार इसे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन मुझे तो है। बाद में हम सब मिलकर इकट्ठे खाना खाएंगे, तुम, मैं और बच्चे। मुराद ये कहकर अपने बहन भाइयों के साथ बैठ गया था। बिल्किस उर्फ बिल्लो ने बामुश्किल अपने आंसू छुपाए थे। पता नहीं क्यों दादी मरहुमा की याद आना शुरू हो गई थी। तुम बहुत झल्ली हो बिल्किस, दुनिया की बातों में आकर अपना सुहाग मत उजाड़ना। मैंने तुम्हारे मर्द की आंखों में हया देखी है।
जिस मर्द की आंखों में हया हो कभी घर नहीं तोड़ता। अभी तुमसे दूर ज़रूर है, एक दिन लौट कर ज़रूर आएगा। इस वक्त तुम इसके सामने अपनी थकन लेकर मत बैठ जाना, बल्कि उसकी थकन समेट लेना। और जानती हो ना, सऊदीया बहुत दूर है, वहाँ का मौसम जान लेता है। दादी की लाडली ने इन गुजरे हुए सालों में उनकी नसीहतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती, और आज वो अपने हया वाले मर्द की अपने लिए फ़िक्र भी देख रही थी। शादी होने के बाद इतने सालों बाद वो एक दूसरे के लिए अब भी नए नए थे, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बिल्किस ने गुड़िया के साथ मिलकर बर्तन समेट लिए थे। सबने दोबारा मुराद की तरफ रुख कर लिया था। आपा ने अपनी छोटी बच्ची को मुराद के सामने पेश किया था। ये मेरी छोटी बेटी है नीलम, बहुत याद करती है तुम्हें। कहती है जब मामू आएंगे तो मैं उनसे सोने की बालियाँ लूँगी। मामू मुस्कुराना भूल गया था। नज़रें दूर किसी गुलदान को ठीक करती हुई गुड़िया की तरफ उठी थी, जिसके कान मोती जेवर से खाली थे। बड़े और छोटे भैया ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे किए थे। हमने सोचा है आड़त का कारोबार थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हैं ना, सब संभाल लेंगे। अजीब सी घुटन होना शुरू हो गई थी। बहनों ने भाई का सऊदीया से लाया हुआ बैग फर्श पे खोल लिया था। खुशबू की शीशियाँ, जाय नमाजें, एक दो सोने की बारीक चैन। कभी कभी रिश्ते कब्ज़ा माफिया ग्रुप बन जाते हैं, नोच लेते हैं, खसूट लेते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं, कभी कभी दिल और कभी रूह। आने वाले शाम के वक्त बहुत कुछ समेट कर चले गए थे। पीछे खामोशी रह गई थी, सुकून भरी। मुराद ने गुड़िया और रद्दी को अपने पास बुला लिया था। दोनों बच्चों को अपने दाएं बाएं बिठाए। पता नहीं क्यों वो अपने आंसू नहीं संभाल पाया था। रो रहा था हिचकियों के साथ, सिसकियों के साथ। दोनों बच्चे बाप के आंसू साफ कर रहे थे, रोने से मना कर रहे थे। अंदर कहीं कमरे में बल्कि इसने पता नहीं कौन सी बंद अलमारियां खोलनी शुरू कर दी थी। ये बच्चों और उनके बाप का जज्बाती लम्हा था, और बल्कि इस लम्हे से दूर रहना चाहती थी। कपड़ों का ढेर फैलाए जाने कितनी देर तक फर्श पर बैठी रही थी। जब मुराद कमरे की चौखट पर आकर खड़ा हो गया था, वो सिर्फ इसे देख रहा था, बगैर पलके झपकाए, टिकटिकी बांधे। ठीक कहती थी नानी, वो वाकई घर और इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत थी। सुना है तुम अब मैट्रिक फेल नहीं रही। गुड़िया ने बताया तुमने बीए कर लिया है। मैं सोच रहा था एमए क्यों नहीं किया। एमए कर लेती तो आपसे ज़्यादा पढ़ लिख जाती। और दादी कहती थी ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तुम्हें पता है मेरी नानी भी एक बात कहा करती थी। आपकी नानी तो बहुत सारी बातें कहा करती थी। आप कौन सी बात की बात कर रहे हैं। कहती थी बल्कि इसकी पेशानी रोशन और आंखें सितारों जैसी हैं। गलत कहती थी क्या। गलत तो नहीं, बिल्कुल ठीक कहती थी। उन्होंने तुम्हारी आंखें और पेशानी देखी थी, मैंने कुछ और देखा है। कुछ और क्या। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है ना, दरिया जैसा, शायद नहीं समंदर जैसा। समंदर का पानी खारा होता है, तुम्हारे समंदर का पानी मीठा है। फिल्में देखने लगे हैं आप। क्यों। फिल्मी बातें जो कर रहे हैं। एक बात कहूँ, जी कहें। तुम ऐसी क्यों हो। ऐसी कैसी। सबसे अलग, सबसे जुदा। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। मेरे जैसी बददिमाग, कम अकल, कम सूरत, एक बुरी बीवी, एक बुरी माँ, और भी पता नहीं क्या क्या। तुम्हें पता है वहाँ से आते हुए मेरे ऊपर सऊदीया के पहाड़ों जितना बोझ था। मुझे लगता था पाकिस्तान में मेरा कोई घर मुंतज़िर नहीं होगा, कोई शरीक हयात आँखों में इंतज़ार सजाए मेरी राह नहीं तकती होगी। मेरी औलाद मुझसे गले नहीं लगेगी। तुमने मेरे सर से बहुत सारे पहाड़ सरका दिए हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि एक मियाँ बीवी के रिश्ते को क्यों एक दूसरे का लिबास कहा जाता है। तुम वाकई लिबास जैसी हो, और मैं शायद कोई खस्ता हाल कतरन। कल से मैं बार बार तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे गुजरे हुए पिछले सारे साल सोच रहा हूँ। तुम्हारी नज़र की ऐनक के पीछे मुझे तुम्हारी मुशक्क़त दिखाई देती है। मैं जानता हूँ शायद तुम मुझे सब कभी ना बताती, अपनी मुशक्क़त, अपनी मेहनत, अपनी तन्हाई। तुम जानती हो तुमने जो औलाद पैदा की है, सारी दुनिया भी तुम्हारे ख़िलाफ़ होगी, यहाँ तक कि मैं भी। तब भी तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, तुम एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ ज़रूर हो। सोच रहा हूँ तुमसे सीख लेता हूँ कि एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। मुराद बल्किस उर्फ बीए पास बिल्लो के पास फर्श पर बैठ गया था। इसने धीरे से अपना सर किसी बच्चे की तरह उसके घुटने पर रख दिया था, बल्कि इसने इसे रोने दिया था। गुजरे हुए सालों के आंसू दिलों में जमा नहीं होने चाहिए।
ورنہ ہی جراثیم بن کر روح کے مدافعاتی نظام کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ باہر اتری ہوئی شام کے دامن میں بہت سارے موتی اور ستارے تھے جو وہ ان دونوں کے لیے لے کر منتظر تھی۔ آج بھی بلقیس کے لیے مراد کے بیگ میں صرف کھجوریں اور آب زمزم باقی رہ گیا تھا۔ کون جانے، کس کو خبر کہ جس کے حصے میں عجوہ کھجوریں اور آب زمزم آئے انہیں کسی قیمتی دھات، سونے، چاندی، ہیرے موتی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے رابطے کہیں اور ہوتے ہیں، کہیں اور، سمجھتے ہیں نا آپ؟ ضرور سمجھتے ہوں گے۔ یہ دل والوں کی دنیا ہے اور دل والوں کا مقام اونچا ہوتا ہے، آسمان جتنا، چاند جتنا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔